Hello students, good morning. Welcome to your social studies class. So in our previous class, we have started civics first chapter, the role of constitution and the need for laws. And हम लोग ने पेज नंबर 56 तक कंप्लीट कर दिया था. And now today we are going to continue the chapter from page number 57, role of the constitution in determining the authority of law. The legislature passes a law. A law is a dead letter until it is put into practice. जो भी legislature से law pass होता है वो एक dead letter की तरह होता है जब तक उस law के ऊपर practice ना की जाए और जो executive हैं उस पर response अच्छा ना दे करके उसको implement ना कर दें तब तक कोई भी law practice में या existence में नहीं आ सकता है. The Constitution says the legislature cannot make a law which is not in keeping with the fundamental rights concerned in part 3rd. कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर कोई भी लॉ ऐसे नहीं बना सकता है जिसमें फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व नहीं हैं. राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट. द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इम्पोज लिमिट्स ऑन एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स. राइट्स हमें जो मिले हुए हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो वही सारी चीज़ें नहीं हैं. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जितने भी राइट्स हमें मिले हैं हमें उन्हें एंजॉय करना चाहिए बट इन अ सर्टेन लिमिट. इन अदर वर्ड द लॉ पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द एन्जॉयमेंट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल. अगर हम अदर लैंग्वेज में बोलें तो जितने भी हमारे राइट्स हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं उनके एन्जॉयमेंट के लिए कि इंडिविजुअल का जो राइट है वो हम ऐसे यूज़ करें कि हमारे उन राइट्स की वजह से किसी अदर को कोई हार्म या फिर कोई भी परेशानी ना हो सके. इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया sufficient numbers of laborers were not available for agriculture purpose since most of the villagers were employed in the different industries in region. To ensure the adequate supply of labor, the deputy commissioner passed an order forbidding the manufacturers of beedis during the agriculture season of some village. The matter was taken to the court. The court declared the order void. It stated that the order made by the deputy commissioner imposed on unreasonable restriction upon the freedom to carry on any occupation, trade or business. सो हम किसी के ऊपर भी किसी भी तरीके से फोर्सफुली कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं. ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें अपनी ऑक्यूपेशन चूज़ करने की फ्रीडम मिली हुई है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो वन will impose forcefully any restriction on us. Laws and dissident. When the laws have been passed by the legislature, we have to follow them. अगर कोई भी लॉ लेजिस्लेचर के थ्रू पास हुआ है तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए. Though the legislature is elected by the people, it does not mean that all laws passed by it are in the interest of people. जो लेजिस्लेचर है वो पीपल के थ्रू ही चूज़ किया जाता है बट इसका मतलब ये नहीं है जितने भी लॉज बन रहे हैं वो सारे पब्लिक के इंटरेस्ट में ही हैं. बहुत सारे कई बार ऐसी लॉज भी बनते हैं या एग्जिस्टेंस में आते हैं जिसमें पीपल का इंटरेस्ट नहीं होता है. ओके, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर. लेट्स डू एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर. Tick the correct option. First, the Constitution prohibits human trafficking under. Right answer is C, right against exploitation. Next, second, our Constitution guarantees dash fundamental rights. Right option is B, 7. Third, dash is an introduction to the Constitution. Right answer is A, preamble. Next, objective resolution was framed by. Right answer is A, Jawaharlal Nehru. And fifth, last, the Congress declared Purna Swaraj on. Right option is A, 26 January 1950. Fill in the blanks. First, the dash is responsible for implementing laws. Constitution, CONSTITUTION, Constitution. Second,
A preamble is an introduction to the constitution. Preamble, preamble. Third, the dash resolves the conflict regarding a law between a state legislature and the central government. Parliament. Parliament, parliament. Next, and dash is the process through which changes in the constitution are carried out. Amendment. AMENDMENT, amendment. And fifth, the dash gives us information about the composition of government. Constitution. CONSTITUTION, constitution. Now C, right, true or false. First one is false, second is false, third is false, fourth is true, fifth is false, and sixth is true. Okay. Now see, match the column. Right sequence is 3, 5, 2, 4, 1. Okay. Now see question and answer of this chapter. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन. आप चैप्टर के स्टार्टिंग में आप देखोगे ऑन पेज नंबर 55, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन. आंसर इज़ गिवन, ब्रैकेट जहाँ से ओपन है एंड जहाँ पे क्लोज है, ये आपको कंप्लीट आंसर इसका लिखना है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई मस्ट चेंज बी ब्रॉट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड योर आंसर इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 55. चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको स्टार्ट करना है जहाँ से ब्रैकेट ओपन है, एंड क्लोज आप करेंगे ऑन द नेक्स्ट पेज थ्रू अ प्रोसेस नोन एज अमेंडमेंट, यहाँ तक. ठीक है. कंप्लीट पैराग्राफ आंसर नंबर 2 रहेगा. क्वेश्चन नंबर 3 आप कट कर दीजिए. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ द अथॉरिटी ऑफ लॉ डिटरमाइंड. पेज नंबर 57 पे रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ लॉ हेडिंग के अंडर में आप देखेंगे ब्रैकेट ओपन है, द लेजिस्लेचर पासेज अ लॉ. यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, यहाँ तक ब्रैकेट जहाँ पे क्लोज है. ठीक है. ये आपका आंसर नंबर 4 है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई हैव कॉन्स्टिट्यूशंस इवॉल्व्ड. योर आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 55. ओके. कंप्लीट पैराग्राफ आपको लिखना है. द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ वाइटल इन्फॉर्मेशन, यहाँ से स्टार्ट करना है अप टू सर्टेन लिमिटेशंस ऑन गवर्नमेंट. ओके. ये आंसर नंबर 5 है आपका. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द फंक्शन ऑफ प्रीएम्बल. व्हाट आर द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया. आंसर नंबर 6 आपका पेज नंबर 56 पे दिया है, द प्रीएम्बल पे. इसमें आपको फर्स्ट पैराग्राफ ही आप देखेंगे, द प्रीएम्बल हेडिंग है, उसके नीचे फर्स्ट लाइन, द एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस. ब्रैकेट जहाँ से ओपन है वहाँ से जहाँ तक क्लोज हुआ है वहाँ तक. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 7 आप कट कर देंगे. सो वी हैव completed first chapter of civics, and in our next class we will start the new chapter.